Hello students, welcome. This is your next video from chapter number 1, Chemical Reactions and Equations. In previous videos, we discussed about the types of chemical reaction. So as we have already discussed about, there are 5 types of chemical reaction. Out of 5, we have already discussed about the 4 types of chemical reaction. First one was the combination reaction. The reaction in which there are 2 or more substances or reactants combined together to give a new single product. That is known as combination reaction. In second reaction, that is decomposition reaction. So the decomposition reaction was defined, or can be defined as when a single substance is decomposed into 2 or more simpler substances or product. That is known as decomposition reaction. So decomposition reaction can be classified under 3 categories, that is decomposition in presence of heat, decomposition in presence of sunlight, and decomposition in presence of electricity. So we had already discussed about all 3 types and with example. After that, the third type of chemical reaction was displacement reaction. So displacement reaction can be defined as a chemical reaction in which a more reactive element or substance displaces a less reactive element from a compound. That is, a more reactive element displaces a less reactive element from a compound. That is known as displacement reaction. So any element can displace any other element. It depends on the reactivity series. On the basis of reactivity series, we can define whether this metal can displace other metal or not. After that, we discussed about the fourth type of chemical reaction, that was double decomposition reaction. In double decomposition reaction, there are exchange of ions throughout the solution. It means the cation of the first reactant combine with anion of the second reactant, and the anion of the first reactant combine with the cation of the second reactant, and they form a 2 new substances. Okay, and that product side, one substance is water insoluble, that is known as precipitate, and double decomposition is the also example of the precipitation reaction. Now here is the 5th type of chemical reaction, which is redox reaction. So redox reaction stands for, redox is the combination of 2 words. The first one is red stands for reduction and ox stands for oxidation. Red stands for reduction and ox stands for oxidation. It means redox reaction is such type of chemical reaction in which there is oxidation and reduction take place simultaneously. Means such type of chemical reaction in which reduction and oxidation take place simultaneously is known as redox reaction. So redox reaction के बारे में हम जनरली क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो सेम केमिकल रिएक्शन में. ठीक है, जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट हैं. अब बात ये आती है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसी केमिकल रिएक्शन में हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज़ को हम डिफाइन कैसे करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर रिडक्शन हुआ, इस एलिमेंट का रिडक्शन हुआ या इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ. तो उसको डिफाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, जिन डेफिनेशंस को हम फॉलो करेंगे और कंफर्म कर सकते हैं कि वहाँ पर रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, तो चलिए पहले इन डेफिनेशंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं और फिर एग्जांपल्स के थ्रू इनको कंफर्म करते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कैसे होगा. अगर मैं कहता हूँ ऑक्सीडेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, जिसको मैं कहता हूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. तो यहीं से फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास निकल के आती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ये यहाँ पे वहम मत बनाना कि ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे
इसको सिर्फ मैंने समझने के लिए स्प्लिट अप किया है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ से ये नहीं कर सकते। स्प्लिट अप मतलब इसको एक तरह से निमोनिक की फॉर्म में यूज कर रहा हूँ मैं, कि ऑक्सीडेशन को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और हमने अभी कहा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जस्ट रिवर्स है। तो अगर ऑक्सीडेशन यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसके साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक दूसरे के रिवर्स चलेंगे। अगर कहीं पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो दूसरी साइड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। मीन्स ऑक्सीडेशन में मैं अगर कह रहा हूँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो रिमूवल किसका होगा, हाइड्रोजन का। और अगर यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेफिनेटली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दो डेफिनेशन क्लियर है। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ और डेफिनेशन आते हैं, लाइक एडिशन ऑफ मेटल। एडिशन ऑफ मेटल, मेटल हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, बिकॉज मेटल के पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। सो मेटल्स को मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह सकता हूँ। और एडिशन ऑफ मेटल जो होगा उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। अगर यहाँ पे एडिशन ऑफ मेटल हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ मेटल। रिमूवल ऑफ मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर। अगर ये एडिशन ऑफ मेटल को हम रिडक्शन कह रहे हैं तो रिमूवल ऑफ नॉन मेटल जो होगा वो भी रिडक्शन कहलाएगा। क्लियर। एडिशन ऑफ मेटल एंड रिमूवल ऑफ नॉन मेटल। और अगर यहाँ पे रिमूवल ऑफ नॉन मेटल हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। ये चार डेफिनेशन क्लियर है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ और डेफिनेशन आते हैं, लाइक रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मैं दो निमोनिक याद रख सकता हूँ, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इन शॉर्ट लिख सकते हो ऑयल, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम लिख सकते हैं रिग, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो याद रखने के लिए ऑयल रिग, दैट इज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि रिड्यूस, दैट इज रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन वर्ड से हमने यहाँ पे लिया रिड्यूस, रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा अभी आगे हम सीखेंगे। और इसके बाद मैं कहता हूँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो, रिड्यूस हो तो रिडक्शन, और इंक्रीज हो तो ऑक्सीडेशन। क्लियर है। तो इस तरह से हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को इन 6 डेफिनेशन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। क्या क्या डेफिनेशन कहीं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ऑक्सीडेशन को स्प्लिट अप किया समझने के लिए, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। अगर मैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कह रहा हूं तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो एडिशन किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का। और यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फिर थर्ड डेफिनेशन मैंने कही कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ मेटल, सॉरी एडिशन ऑफ मेटल, तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ मेटल। रिमूवल ऑफ मेटल है तो एडिशन किसका होगा, नॉन मेटल का, और एडिशन है या तो रिमूवल किसका होगा, नॉन मेटल का। उसके बाद मैंने कहा रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मैंने कहा रिडक्शन यानी दैट इज रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये कुछ हमने बेसिक सी डेफिनेशंस को डिस्कस किया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन, किसी एक केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं और किस किस टाइप से हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे पहले Na+O2 gives Na2O, Na+O2 gives Na2O। तो यहाँ से सोडियम प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, सोडियम ऑक्साइड। तो देखो यहाँ पे सोडियम रिएक्टेंट साइड में किसी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं था, बट सोडियम जैसे ही प्रोडक्ट साइड में गया तो सोडियम ने अपने साथ ऑक्सीजन गेन कर ली, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। यहाँ पे सोडियम के साथ में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ यहाँ पर सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। इन केस ऑफ ऑक्सीजन बात करो तो ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड से
प्रोडक्ट साइड में जाने पर ऑक्सीजन ने सोडियम गेन किया है, ऑक्सीजन ने सोडियम को गेन किया। सोडियम हमारे पास एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है या एक मेटल कह सकते हो। और देखो एडिशन ऑफ मेटल क्या कहलाता है, दैट इज रिडक्शन। एडिशन ऑफ मेटल क्या कहलाएगा, रिडक्शन। इट मीन्स ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। तो यहाँ से हमें पता लग गया इस कंप्लीट रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा है और ये कंप्लीट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखो यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ, कौन सी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि हमने कहा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। यहाँ पे सोडियम के साथ में प्रोडक्ट साइड जाने पे ऑक्सीजन कंबाइन हुई। मीन्स अगर ये यहाँ पे ऑक्सीजन ये वाला एलिमेंट ना होता, ये अपने ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड ना करता, तो क्या इसका ऑक्सीडेशन हो पाता, नहीं हो पाता। इट मीन्स सोडियम के लिए ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड करी, इस एलिमेंट ने। तो ये सोडियम के लिए एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सोडियम के लिए एक्ट कर रहा है कैसे, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का मतलब क्या है, प्रोवाइड कराने वाला। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ, O2 की वजह से। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इस केस में देखो अब ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ। रिडक्शन किस बेसिस पे हुआ, किसने मेटल को गेन किया। तो सोडियम अपने आप को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया। इट मीन सोडियम यहाँ पे इसके लिए कैसे वर्क कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये कैसे वर्क कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, द सब्सटेंस विच अंडरगो इटसेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूस अदर। खुद तो ऑक्सीडेशन हो और दूसरे को रिड्यूस करे, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां से सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। O2 का रिडक्शन हो रहा है, ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। याद रखने के लिए सिंपली कह सकते हो कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में बात करता हूं, H2 प्लस O2 गिव H2O। रिएक्शन बैलेंस कर लेना बाद में। H2 प्लस O2 गिव H2O। इसमें चेक करते हैं किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हुआ। मैं हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं। हाइड्रोजन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाने पे हाइड्रोजन ने अपने साथ ऑक्सीजन को ऐड किया। और जब भी कोई एलिमेंट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को ऐड करता है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। इट मीन्स H2 का क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। इन केस ऑफ ऑक्सीजन ऑन गोइंग रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड, इट ऐड हाइड्रोजन। इसने अपने साथ क्या ऐड किया है, हाइड्रोजन ऐड किया है। दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। यानी ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन। तो H2 का ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ, H2 ने ऑक्सीजन इससे यहाँ पे गेन किया है ना। इट मीन्स ये इसके लिए एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये इसके लिए एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, वी हैव copper oxide plus H2 and it give copper plus H2O। चलो इसमें देखते हैं रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ। हाँ, कॉपर की बात कर लो। कॉपर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाने पे, कॉपर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाने पर तो देखो कॉपर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच था, बट जैसे ही प्रोडक्ट साइड गए वो ऑक्सीजन यहाँ से हट चुका है।
दैट इज यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, दैट इज रिडक्शन। तो ये यहाँ पे क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखो रिएक्टेंट साइड हमें यहाँ पे किसी भी अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं था, बट जैसे ही प्रोडक्ट साइड गया हाइड्रोजन ने अपने साथ ऑक्सीजन को कंबाइन कर लिया, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, दैट इज ऑक्सीडेशन। तो इसका रिडक्शन हुआ, इट मीन्स ये एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। क्लियर है? तो हमने फिलहाल यहाँ पे अभी दो डेफिनेशन के बेसिस पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी अदर डेफिनेशंस की, कि कैसे इनके बेसिस पे कौन से एग्जाम्पल डिफाइन करेंगे, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे सीखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना। तब तक के लिए ये यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन को अच्छी तरह से रिवाइज करना है, इन एग्जाम्पल को समझना है, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, और इस इक्वेशन में आपको फाइंड आउट करना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। रिएक्शन ये है हमारे पास, सिंपल सी है, H2 प्लस Cl2 गिव 2HCl। इस रिएक्शन में तुम्हें फाइंड आउट करना है कौन से एलिमेंट का रिडक्शन हुआ, कौन से का ऑक्सीडेशन हुआ, विच एलिमेंट एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच एलिमेंट एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।